ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर, आप में से कोई वॉलंटियर है जो कहेगा कि मैं जैसे टॉक स्टेशन पे पेश होता है? जी सर, है सर। हाँ, है सर। एनीबडी? कोई एक नहीं बोला 75 में से? कोई तो बोलो ना, वॉलंटियर करो। नहीं, थोड़ा सा कोई एक करे ताकि थोड़ी सी बात वहां से शुरू हो जाएगी। मैं ज्यादा आपको डांटूंगा नहीं, एम्बेरस नहीं करूंगा, प्रॉमिस। सर डॉक्टर सादिया है आई थिंक। डॉक्टर सादिया, सादिया तो एवरीवन। चलो जी, डॉक्टर सादिया आप कहाँ से हो? हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप डॉक्टर सादिया हो? जी जी सर। कहाँ से बोल रही हैं आप? सर सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद। हैदराबाद, माशाल्लाह। आफ्ताब मुनीर से कभी मुलाकात होती है? जी सर, होती है। वो मेरी बहन की तरह है, जब भी मिले मेरा बहुत बहुत उनको सलाम कही। जी सर, बिल्कुल। आफ्ताब की एक बात यूनिक है जो किसी और का हिस्सा नहीं बनती। आपको पता, आप हैदराबाद में रहती हैं। आफ्ताब का भतीजा पीपल पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है। आफ्ताब का भाई भी था बहुत बड़ा, और आफ्ताब खुद भी। जितने लोग पुराने जमाने में अपना करियर हैदराबाद से शुरू करते थे, जब भी मौका मिलता था कराची चले जाते थे। सब बड़े नाम हैदराबाद से शुरू किए, फिर कराची में सेटल हो गए। आफ्ताब कुड हैव डन दैट एनी टाइम, पर आफ्ताब ने सारी जिंदगी हैदराबाद में गुजारी है, सर्विंग हैदराबाद एंड इंटीरियर सिंध। तो कहीं पे भी चले जाओ, मैडम का मतलब होता था आफ्ताब। आजकल पुष्पा मैडम बन गई, तो पुष्पा को भी मेरा सलाम करना। तो वो तो मेरे बच्चों की तरह, लेकिन आफ्ताब ग्रेट लेडी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। आज हमने ओवेरियन ट्यूमर की बात करनी है। आप लोग कुछ पढ़ के आए हो कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ के आओ तो ज्यादा बेनिफिट होता। लेकिन डॉक्टर सादिया, आई प्रेजेंट यू। टाइम करेंगे हम। आप मेरे टॉक स्टेशन पे आए हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि डॉक्टर सादिया, वी हैव ए पेशेंट एज 60 years, नोट करते जाइए। शी इज पोस्ट मेनोपॉजल फॉर age 60, post menopausal for 10 years, and comes to you complaining of a mass abdomen which she has recently noticed, and that mass is causing abdominal distension, and for last few months she has lost appetite and some weight. मेरी हिस्ट्री हो गई कंप्लीट। How will you manage this patient? मैं रिपीट करूं हिस्ट्री। Patient age 60, menopausal for 10 years. She has noticed a mass abdomen and some distension of abdomen. And she has also noticed that she is losing weight for the last few months. जी बोलिए, how will you manage this patient? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज आ रही है। तो फिर डॉक्टर सादिया बोलिए, आपके पास 10 मिनट है इसको मैनेज करने। जी जी सर। I would like to know some relevant question regarding the case from the patient.
in history? जी बिल्कुल ठीक. क्या मसला? How long she is married, and how long she is married, and how many kids she has, जी and what about her parity, and जी how she noticed the mass in abdomen? Does it increase gradually or sudden in an onset? And is there a history of any pain in the mass? Its site, nature, radiation, associated relieving factors, and pressure symptoms, dyspepsia, dysphagia, and any prominent leg veins, and how long she is having a complaint of loss of weight and appetite. Is there any history of chest pain and hemoptysis? Is there any history of urinary and the bowel problems? I would like to know the family history of malignancy of the breast and the ovarian cancer. And I would also like to evaluate the risk factors for the ovarian malignancy. मसला क्या है आपके ख्याल में? क्या सर जिससे फैमिली हिस्ट्री होती है, और सर अगर अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज और यूज ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स, जी or and I would also like to know will evaluate her for the protective factors, any use of the OCPs, breastfeeding, more pregnancies. After जी that I will perform the general physical examination and local examination. In general physical examination, I would like to know the BMI of the patient जी and prominent leg veins, lymph nodes, supraclavicular in the groin. In local examination, I would like to know the abdominal examination in which I want to see the size of the mass, its region, location, its surface margins, and mobility. Will assess the patient, will assess the mass for the ascites, and also for the palpate the groin lymph nodes. After that, I will perform the pervaginal examination. In pervaginal examination, I will be doing the bimanual examination to assess the size of the uterus, its position, and the adnexa, status of the adnexa, any mass, its size, position, and its characteristics, either Good. unilateral or bilateral. जी After that, I will ask for the patient for the certain investigations, in which including the general investigations and the specific investigations. Complete जी blood count, random blood sugar, anti-HCV, hepatitis B, surface antigens, urine complete examination, and LFTs and the RFTs of the patient. And a specific examination, I would go for the pelvic ultrasound to see the size of the uterus, its endometrial thickness, endomyometrial echogenicity, and adnexal pathology. If there is adnexal pathology, I would like to know the number and the size of the mass. Either they are unilateral, bilateral, and complex or simple, multilocular, unilocular, septa, capsule thickness, and blood flow on the Doppler, and ascites, any peritoneal involvement ascites. Sir, after that, if my patient is postmenopausal, and sir, I would like to do the abdominal ultrasound, in which I want to know the liver status of the patient and the renal status of the patient. I would like to know, do the chest X-ray of the patient, to first for the anesthetic fitness purpose, and second to see the any
chest metastasis. If I find if I find any suspicion of the malignancy on ultrasound, I would like to do the tumor markers of the patient. In postmenopausal age group, usually epithelial cell tumors are more common, so I would like to do the CA-125 and other tumor markers. If examiner asks, then I can tell. But sir, abhi sir, jo is age group mein epithelial cell tumors are common, so I would like to know the CA-125 and will calculate the RMI according to by the ultrasound findings and multiplying with the CA-125 levels. After that, I would like to do the CT scan to see the extent of the disease and to see the metastasis and to see the lymph node involvement. After completing my investigation, I will counsel the patient and the couple in a very empathetic approach that maybe she is having a mass which is most probably malignant in nature, but my final diagnosis will be confirmed after histopathology report. So I will counsel the patient and couple, and I would ask the patient that she will be prepared for the surgery, that is staging laparotomy. Before that, I will optimize the general condition of the patient, that is her hemoglobin levels, and arrange 2 to 3. I will build up her hemoglobin up to 10 grams per deciliter before operation, and will keep 2 to 3 pins of blood in hand for the surgical procedure. And before surgery, I will prepare gut preparation of the patient is to be done. Will give clean enema one day before the operation, and one at the 12 a.m. and one at the 6 a.m. on the day of the operation. Will take the anesthetic fitness, will take informed written consent, and then after antibiotic cover, and I will ship the patient to the operation theater room, in which if first of all I will perform the examination under anesthesia, and I will reconfirm my findings on bimanual examination. After that, I will do the laparotomy, in which if the mass is greater than 12 week size, then I will open the abdomen by the midline incision. Sir, वैसे staging laparotomy होती midline में, तो मुझे midline नहीं बोलना चाहिए था. I will give the midline incision to the patient, and then after that, I will take the peritoneal washings if present. If they are not present, then I will instill 100 ml of the normal saline into the paracolic gutters and will take the peritoneal washings and send for the histopathology. After that, I will inspect the mass, its size, its location, its origin. Either it is unilateral, bilateral, capsule, and its thickness and its surface, either is smooth or its margins is regular or irregular. And will note for the ascites. I will assess other adnexa. I will also see the status of the uterus, its size, and any abnormality, and assess, will also palpate the undersurface of the diaphragm. जी सर. शादी घंटी बज गई है और आपका टाइम खत्म. जी सर. मैं अब आपके बाकी साथियों को बताता हूँ. हम सेक्शंस में बात करेंगे. मैं दोहराता हूँ कि मैंने प्रेजेंट की इस टॉक स्टेशन पे ये पर्ची आपको मिल गई जिस पे लिखा हुआ है एज 60 years, menopausal 12 years, complaints of a mass abdomen and distension of abdomen, loss of appetite and weight in recent months. ये है. उसको ये पढ़ के इन्होंने डॉक्टर सादिया ने शुरू किया कि मैं उसकी हिस्ट्री लूं. हिस्ट्री में उन्होंने बोला how long she has been married,
उनके बच्चे कितने हैं, मैस कब नोटिस हुआ, उसमें कोई पेन है कि नहीं है, उनको डिस्पेप्सिया कब से है, और वेट लॉस कितना हुआ है, और उनके कोई यूरिनरी बाउल सिम्टम्स और हैं कि नहीं है। और फिर हिस्ट्री में ही कहा कि मैं उनकी फैमिली हिस्ट्री लूंगी। फैमिली में हिस्ट्री के बाद फौरन बाद वो चली गई कि मैं पूछूंगी कि उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अर्ली मैरिज और लेट, या यूज ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट, या उसने ओसीपी इस्तेमाल किया, या दोबारा फिर कहा उसकी प्रेगनेंसीज कितनी हुई। ये यहाँ तक ये हिस्ट्री हुई है। अब वापस चलते हैं कि इस पेशेंट की जिसकी एज 60 इयर्स है, उसमें मैस एब्डोमेन है, रिसेंटली नोट किया, और एंड इट इज कॉजिंग वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, और इज कॉजिंग डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। ये थी हिस्ट्री। आपके ख्याल में आपका डॉक्टर सादिया, जस्ट ऑन बेसिस ऑन दिस, आपका पहला डायग्नोसिस क्या है इस पेशेंट? डॉक्टर सादिया, हेलो। जी sir, on the basis of the scenario given to me, my provisional diagnosis would be ovarian malignancy, any ovarian mass. हाँ, एब्सोल्युटली राइट। आपका सोच बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे 60 साल पेशेंट में मैस एब्डोमेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये वो, तो ये पहला डायग्नोसिस ओवेरियन बनता है। क्योंकि मैस एब्डोमेन जो पेशेंट ने फील किया, वो मैस जो है मोर देन 12 वीक्स है ना, जनरली 20 वीक्स या उससे, तो उतना बड़ा 60 साल में फाइब्रॉइड नहीं सिम्टम कॉज करेगा, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, और कोई नॉन गायनेकोलॉजिकल मैस हम सोचेंगे बाद में, लेकिन इस पेशेंट में वो नहीं हो सकती। तो पहला डायग्नोसिस आपका बिल्कुल सही है। अब आपने वो डायग्नोसिस करके सवाल ये पूछे 10, मसलन हाउ लॉन्ग शी वाज मैरिड, डजंट मैटर। आप बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है कि वो नहीं सर, मैरिड फोर्स से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैरिटी से फर्क पड़ता है। नहीं जी नहीं, फिर आपने बोला ना मैरिड, हाउ लॉन्ग शी हैज बीन मैरिड। मैं आपसे पूछता हूँ, सो वो सवाल फजूल, मुझे नहीं वो सवाल फजूल हो गया आपका, गलत हो, यू वेस्टेड टाइम ऑन दैट, अननेसेसरी। हाँ, पैरिटी आपने पूछी, उसका चूंकि नलीप्रस और मल्टीप्रस में फर्क है, मैंने मान लिया। फिर आपने पूछा हाउ लॉन्ग शी हैज फेल्ट द मैस, ये भी मैंने मान लिया, वैलिड। फिर आपने पूछा उसमें कोई पेन है कि नहीं है, भाई होती तो बोलता, एनी अदर सिम्टम चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ, लेकिन डिस्पेप्सिया, क्योंकि वेट लॉस है इसलिए आप उधर जा रही है, यानी आप ओवरी से हट के दूसरी बातों में जा रही है। आपको फोकस ऑन टू ओवरी रहना है। जब पहला डायग्नोसिस आपका वो है, तो आपका डिस्पेप्सिया, वेट लॉस कितना हुआ, ये तो इन बातों को छोड़ के यूरिनरी सिम्टम्स हैं, बाउल सिम्टम्स हैं, ये सारा आपके 1-2 मिनट में से जाया हो गया। फिर आप आगे अपने फैमिली हिस्ट्री का लफ्ज बोल के फिर रिस्क फौरन पर चली गई कि वो उसने क्लोमिफेन सिट्रेट इस्तेमाल तो नहीं की, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, और उसकी अर्ली
मेनोपॉज या लेट, ये सारी बातें जो हैं आपकी कोई खास हेल्पफुल नहीं है। फिर उसने ओसीपी और नंबर ऑफ प्रेगनेंसी फिर आ गई, पैरिटी ऊपर पूछी थी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें ये हो सकता है कि आपने कभी ओसीपी इस्तेमाल की, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है। ये सवाल आपका वैलिड है, तो प्रेगनेंसी दोबारा पूछने का कोई नहीं। फिर ये सारे सवाल, और इसमें हार्डली आपने रिस्क फैक्टर्स ओवेरियन कैंसर के कवर किए। एक पैरिटी उसकी, दूसरे फैमिली हिस्ट्री बोली, पूरा डायलेट नहीं किया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट एंडोमेट्रियल ओवेरियन कैंसर ये बोलती। सर तो मैंने वो बोला था ब्रेस्ट और नहीं, ओवेरियन बोला था। आपने फैमिली हिस्ट्री बोली, शायद वो बोला तो मैंने सुना, वो वैलिड हो गया। और रिस्क फैक्टर आपने पूरे डायलेट नहीं किए। ओसीपी आई डोंट नो कि उसका यहाँ पे कितनी रेलेवेंस है। मसलन अब हम आते हैं, जब आप किताब खोल के देखिए तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर्स जो इसका मतलब पूछना चाहिए था आपको। फैमिली हिस्ट्री में BRCA1 की स्टोरी पूछती हैं आप, ठीक है, उसकी अपनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी कैंसर पूछती हैं आप, और फिर ये है कि उसका लास्ट स्कैनिंग कब हुआ था, फिर आप उसके साथ मैस के साथ रिलेटेड कोई ब्लीडिंग पूछती, कोई पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हुई उसको कि नहीं, इस तरह के ये रिलेटेड सवाल पूछती तो आपको नंबर मिलते। ये इतने से वेग सी बात होगी, वेग बात होगी। तो इसलिए मैं ही कहूँगा कि आपकी फोकस होना चाहिए रिस्क फैक्टर्स क्या थे आपके नजर में। अब रिस्क जी फैक्टर्स ओवेरियन कैंसर के निकाले तो रिस्क फैक्टर्स हैं मसल उसकी एज, एथनिसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ BRCA1 and 2, फिर रिस्क इज रिड्यूस आपने पूछा, प्रेगनेंसीज, ब्रेस्ट फीडिंग आपने नहीं पूछा, और फिर रिस्क सर इज पूछा था। इंक्रीज, ब्रेस्ट फीडिंग पूछी थी, अच्छी बात। जी सर। चलो ये नाम लेके आप हिस्ट्री में कहते हैं कि आप, मैं आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर ओवेरियन कैंसर, कह के ये सर 4-5 पेशेंट से BRCA1 या 2 का कैसे पूछेंगे? डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि BRCA1 म्यूटेशंस का, या सर बस उससे ये पूछ सकते हैं कि फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर? आप यही ना कि आपने पहला डायग्नोस बनाया ओवेरियन, तो ये 2-3 बातें पूछ के आप सीधा लफ्ज बोलती, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट इफ शी हैड एनी रिस्क फैक्टर्स, फिर ये 4-5 चीजें सीधी सीधी बोलती, आपको पूरे नंबर मिल जाते, आपको पूरे नंबर मिल जाते, और आपका टाइम भी बच जाता, आपका टाइम भी बच जाता। और फिर रिस्क फैक्टर्स के पूछने के बाद, हिस्ट्री के बाद, फिर हम आए एग्जामिनेशन पे। आपने कहा मैं उसका BMI देखूंगी, और लिम्फ नोड 2 दफा आपने कहा ग्राइन में, क्या ओवेरियन कैंसर में ग्राइन में ओवेरियन लिम्फ नोड होते हैं? नहीं होते सर सुप्राक्लेविकुलर होते हैं। सो वो हो सकता है, लेकिन ग्राइन आपने 2 दफा बोला, वो नहीं होते। यहाँ आपसे फिर वो खामखा का वक्त आपका जाया करता, एनेटमी पूछता, लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ओवरी पूछता, तो आपका वक्त भी जाया होता और नंबर भी कट जाता। आपने जी 2 सर। दफा लिम्फ नोड्स इन ग्राइन बोला, फिर लोकल बोला, तो जिस पे एम्फेसिस होना चाहिए था वो आपने बिल्कुल नहीं दिया। कि जब आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कह के, तो फिर बोलते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ये याद रखिए सब के सब आप जो सुन रहे हैं मुझे, कि जब आप इम्तिहान में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बोले तो आपने ये सामने रख के बोलना है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, कि I will inspect the abdomen for any distension or any prominence. Then I'll palpate and find out the size of the mass. फिर उसके आगे चलिए, चूंकि वेरिएंस सस्पेक्ट कर रहे हैं, I'll find out whether the mass is cystic, nodular, or
टेंडर एनी जी सर। टेंडर, ये अल्फाज बोलने हैं आपने। फिर परकशन पे, I'll do percussion to rule out any ascites or find out any ascites. मैं दोहराता हूँ, I'll do general physical examination for the health and abdominal examination. I'll try to do inspection to find out dissension, then palpation to find the size of the mass, its nodularity, its tenderness, and its feeling of being cystic. Then I'll do percussion to find out any shifting dullness, to rule out any ascites. ये अल्फाज बोलने हैं, ये अल्फाज बोलने। फिर ये एब्डोमिनल, चूंकि कंप्लेंट है एब्डोमिनल मास जो पेशेंट ने नोट की हुई है, उसके बाद आप आगे पीवी पे, तो पीवी को मुख्तसर कीजिए। आप बड़ी लंबी बोली पीवी, बल्वा वजाइना सर्विक्स, ये जो कि यहाँ पे mass, I'll find out on pelvic examination whether mass is palpable in on bimanual examination and it is separate to the uterus. ये अल्फाज इस तरह से, ये अल्फाज, चूंकि हम ओवेरियन सिस्ट की बात करें, ये अल्फाज इस तरह से बोले। फिर हम आगे टेस्टों पे, एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, then you said I'll do health profile, CBC, blood sugar, hepatitis, urine, liver function test, renal function test. ये सारे टेस्ट जो हैं वो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी हमारा था जो आपने बोला कि उसका मैं ट्यूमर मार्कर करवाऊं। अब मुझे महसूस हो गया आपको ट्यूमर मार्कर CA-125 आता है, बाकी के नहीं आते। You were hesitant about it in naming them. या तो सिर्फ ट्यूमर मार्कर CA-125 फुल स्टॉप कर लो। सर मुझे आते थे मार्कर्स, लेकिन मैंने कहा कि मैं एपिथेलियल ट्यूमर वो जो भी था, फिर मैं आपको वापस लेके जाता कि ट्यूमर मार्कर बोलिए क्या क्या है, बीटा HCG क्या है, फिर बीटा प्रोटीन क्या है, LDH क्या है, वगैरह वगैरह। तो आप खुद ही बोल दीजिए कि इन दिस केस CA-125 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस उम्र में ज्यादा एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं और स्टोमल सेल ट्यूमर और वो सेक्स कॉर्ड ट्यूमर अनकॉमन होते हैं। ये बोल दे तो ट्यूमर मार्कर बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन खैर अगर आपको आते हैं वो बोले जा सकते थे, वो बोले जा सकते थे। और फिर हम आए अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे आप फेल हो, आप फेल हो, वो इस सेशन आपके 6 नंबर नहीं है। क्योंकि जब आप ओवेरियन ट्यूमर में अल्ट्रासाउंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे जाके आपने RI में बोला अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स हैं कि वो आपको उसकी तफसील बोलनी थी। I'll do abdominal scan and find out whether the tumor is unilocular, multilocular, उसके जो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग थे जिनके नंबर बनते, whether the walls are thick, अंदर कोई पेपिलरी ग्रोथ तो नहीं है, बाइलैटरल है, यूनिलैटरल है, कैसा है, और फिर असाइटिस भी मौजूद है कि नहीं। ये मेजर इन्वेस्टिगेशन हमारी अल्ट्रासाउंड है इस पेशेंट। उसको आपने इस तरह फोकस करके नहीं बोला, फोकस, तभी मैंने कहा यहाँ पे आप। आज का पहला मैसेज है, अगर आपको इम्तिहान में ओवेरियन ट्यूमर की सस्पेशन है, अल्ट्रासाउंड की डिटेल बोलनी है। I like to find out the size of the mass tumor, then the walls, then the septa, or then fluid inside and solid components inside, papillary growth, ascites outside. ये सारी बातें बोली। डॉपलर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने कह दिया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आके बात खत्म होती थी डायग्नोसिस की। फिर आपको अल्फाज बोलने चाहिए थे कि इफ
the diagnosis of ovarian tumor is confirmed, then by investigations, I would like to find out whether there's any risk, RMI, risk factors of malignancy or not. CA 125 को जरा डायलेट करना चाहिए था, तो इतना हो तो रिस्क फैक्टर malignancy का कम है, 200 से ऊपर हो तो ज्यादा है, वगैरह वो। तो फिर हम दूसरी स्टेशन पे जहाँ पे आप फेल हो गए, आई एम सॉरी सादिया, डोंट गेट अनॉयड विद मी व्हेन आई यूज द वर्ड फेल। मैं तो अपने ट्रेनिंग्स को जब तक 10 दफा फेल नहीं करता था, मुझे मेरी तसल्ली नहीं होती थी हर बात पे, क्योंकि जब मैं फेल कहता हूँ फिर वो पॉइंट आपको पक्का पक्का याद रहता है। तो वो दूसरी पॉइंट जो है, आपने काउंसलिंग को बड़ा ही लाइटली लिया। आपको आई विल काउंसल माय पेशेंट अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट, और फिर उसको कहूँ कि आई सस्पेक्ट यू हैव गॉट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ovarian tumor which possibly could be malignant. जी सर। And if possibly, फिर आप उसके बाद आते हैं, आपने बीच में हिस्टोपैथोलॉजी डाल दी बगैर कोई बायोप्सी का रेफरेंस दिए हुए। आपने कोई बायोप्सी का रेफरेंस नहीं दिया था मुझे, लेकिन कहा मैं उसको काउंसिल करूंगी अबाउट हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी तो हुई ही नहीं है, आपने की ही नहीं है, और ना इसमें हमने करनी है। इसमें नीडल बायोप्सी ये वो सब आउट है। सर मैंने कहा था कि फाइनल डायग्नोसिस विल बी मेड वो आफ्टर, तो वो फाइनल तो बनेगा जब सर्जरी के बाद। जी सर। हिस्टेक्टमी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, फिर फॉलो अप के लिए फिर आएगी स्टेज। तो इसलिए उसके दूसरा पार्ट के उसके काउंसलिंग पे 1-2 मिनट गुजारिए आप। I'll counsel my patient about the possibilities of diagnosis and the stage of the disease, if I can make a diagnosis RMS. Or where the management of this disease, according to the diagnosis, stage 1 और 2A तक तो उसके लेप्रोटमी, हिस्टेक्टमी हो सकती, जो भी है सर्जिकल ट्रीटमेंट, और उसके आगे होगा तो फिर वो जनरली वो सर्जरी क्यूरेटिव नहीं होती, उसको it has to be followed up with chemotherapy और मॉडर्न ट्रीटमेंट जितने भी उनके 1-2 के नाम बोलने होते हैं फिर कि उनको पैक्टिलसल दूंगी और प्लैटिनम बेस्ड ट्रीटमेंट दूंगी, और उसका फिर उसके बाद फिर आई विल फॉलो हर अप और लाइक दिस एवरी मंथ, पहले 6 महीने, फिर एवरी 2 मंथ्स, फिर एवरी 3 मंथ्स एंड बराबर। यहाँ तक बात पहुंचती तो आपके फिर 7-8 नंबर हो जाते 10 में से। जहाँ तक आपने 2 चीजें ग्रॉसरी में से की, एक नंबर 1 हिस्ट्री जो है फोकस नहीं थी आपकी, नंबर 2 ये है कि फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपका उस तरह कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, नंबर 3 अल्ट्रासाउंड, ओवेरियन ट्यूमर का केस हो, अल्ट्रासाउंड को बड़ा ही स्ट्रेच करके बताना और उसकी सारी फाइंडिंग। सर उसमें यूट्रस के लिए नहीं बताना अल्ट्रासाउंड में? नहीं, यूट्रस में इस पेशेंट में जो पोस्ट मेनोपॉजल है कि आई लाइक टू आल्सो सी वेदर देयर इज द साइज ऑफ द यूट्रस एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, बस ये अल्फाज बोल दीजिए ज्यादा। तो लेकिन ये वो जो मैस है उसकी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे बहुत जोर, एक बात। दूसरी बात काउंसलिंग बाबा, इसको इंटेग्रल पार्ट बना लो हर टोक स्टेशन का, हर टोक स्टेशन के हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद काउंसलिंग। ये कंपोनेंट हम बहुत भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हम मरीज को वो फाइब्राइड है, प्रोफेसर साहब ने कह दिया इसकी कल हिस्टेक्टमी हो जाएगी, कल तेरा ऑपरेशन होएगा, उसको बताया ही नहीं जाता बाबा का ऑपरेशन, क्यों ऑपरेशन, किस लिए ऑपरेशन, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन। तो आज का बहुत बड़ा मैसेज आपको ये है, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन,
इन्वेस्टिगेशन के बाद मोटा सा रेड में लिख के अंडरलाइन कर लीजिए, काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग. काउंसलिंग इज फर्स्ट इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस, this is the possible diagnosis, and then inform the patient possible choices of treatment. Choices of treatment कि आपका इलाज ये इस तरह हो सकता है और उसमें से हम ये करने जा रहे हैं, इस तरह से. तो बहुत इम्पोर्टेंट था वो कि काउंसलिंग. फिर काउंसलिंग के बाद आ गया, फिर आपने बोलना था लेपारोटमी, और वो ठीक आपने बोला कि वर्टिकल इंसिजन और ये वो. फिर आपने नहीं बोला कि ओपन करते ही मैं पेरिटोनियल वॉशिंग लूंगी फॉर साइटोलॉजी. ये अल्फाज सर बोला था मैंने. अच्छा, अगर बोला तो अच्छी बात है. तो पेरिटोनियल वॉशिंग लूंगी, वो दरमियान में बोला था, इमीडिएटली नहीं बोला था. तो पेरिटोनियल वॉशिंग इमीडिएटली पहला. एंड नंबर 2 आपने नहीं बोला था, आई विल स्टेज द डिजीज. जी सर. ये अल्फाज नहीं थे आपके. जी आई विल सर. स्टेज द डिजीज, देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड. बस कुछ और बताने को बोले इनकी जरूरत ही नहीं है. आपको एग्जामिनर रोक के पूछे स्टेज 1 है, स्टेज 2A है या स्टेज 3, 4 है, क्या करोगी, फिर वही बोलो जो करोगी. जी सर. तो नंबर 1 के I'll perform a laparotomy by vertical incision, then I'll take peritoneal washing. नंबर 3 लिख लीजिए, रेड से अंडरलाइन कर लीजिए, I will stage the disease. जी सर. And accordingly proceed. बस सर्जरी कंप्लीट हो गई आपकी. सही है सर. फिर वो एग्जामिनर तक है, वो पूछे कि क्या इसमें क्या करोगे. आप कहेंगे स्टेज 1 है तो ये करूंगी, 2 वो अकॉर्डिंगली करेंगे. बस स्टेज द डिजीज एंड प्रोसीड अकॉर्डिंग, फुल स्टॉप. आपका 2 मिनट मैंने बचा दिए यहाँ पे. आप खामखा डिटेल में चले जाते हो, मेंटेक्टमी, लिम्फेडेनेक्टमी, गैरा. जब वो लिम्फेडेनेक्टमी वाला तो मरीज ही सर्जरी उनके पता नहीं कितनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. तो सर्जरी ओवेरियन ट्यूमर की या कैंसर की लिमिटेड है टू स्टेज 1 and 2A तक. उसके बियॉन्ड तो सर्जरी एक तरह से क्यूरेटिव नहीं है. सर्जरी हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय कीमोथेरेपी. सर पेशेंट को 2B के बाद हम डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, डीप बल्किंग सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इस तरह. नहीं, वो सर्जरी से पहले मैंने बता दिया कि आपने कहा तुम्हारी ये बीमारी है और उसके लिए कर रहे हैं. और फिर जब सर्जरी हो गई फिर लफ्ज ऐड कीजिए काउंसलिंग, पोस्ट ऑफ काउंसलिंग. वो पहले प्री ऑफ काउंसलिंग थी, ये पोस्ट ऑफ काउंसलिंग है. आई विल इन्फॉर्म माय पेशेंट दैट ये सर्जरी हुई है, ये हिस्टोपैथोलॉजी आ गई है, अब उसको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है. स्टेज 1 थी, निकल गई है. स्टेज 3 है, उसको जरूरत है कीमोथेरेपी. 4 है, क्योंकि डीबल्किंग हुई है. तो फिर उसके मुताबिक काउंसिल करके कि फर्दर ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप. लफ्ज फॉलो अप जरूर कहिए. तो मैं दोहराता हूँ सादिया, फिर मैं आपसे यही केस दोबारा डिस्कस करने वाला हूँ. तो ये पेशेंट है, आपका एक सेशन ऑन्कोलॉजी का होगा जिसमें पॉसिबली एग्जैक्टली यही केस भी हो सकता है. फिर आप कहेंगे इन्हें पर्चा आउट कर दिया. तो एक सेशन ऑन्कोलॉजी का या ओवेरियन होगा या सी सर्विक्स होगा या पेप्समियर सिर्फ होगा, कुछ होगा रिलेटेड, तो वो होगा. तो इसलिए आज ये है बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर भी हो सकता है. ये 3-4 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी होगी. तो आज का पेशेंट है, लो जी सादिया, आर यू रेडी? जी सर.
फॉरगेट इट, क्या अब तक क्या बात हुई है क्या नहीं बात हुई। आप मेरे सेशन पे आए हो, 10:06 हुए, तो आई टेल यू, या पर्ची दूंगा मैं तुम्हें कि पेशेंट एज 60 years, she is postmenopausal for 10 years and she has noticed recently a mass abdomen and abdominal distension. In addition, she has lost appetite and she is losing weight. How will you manage this patient? After giving my introduction and after taking introduction from the patient, I would take some relevant information regarding the case. That is, I want to know the parity of the patient and bleeding associated, bleeding or discharge associated with the mass. आप माइक से दूर हो गई, आवाज कम। सर अभी आ रही है आवाज? अब आ रही। जी सर। Sir, after giving my introduction to the patient and taking introduction from the patient, I would like to know some relevant information regarding the case of the patient. जी। I want to know the parity of the patient. Any history of bleeding associated with the mass or discharge with the mass. Family history of breast, ovarian. फैमिली पे तब चाहिए, ये कंप्लीट हो गई है, फैमिली तो फिर जाएंगे, देन उसकी पेरेंट हिस्ट्री पूछ लेगी, तो बेशक कह दीजिए इन व्यू ऑफ her age and mass abdomen, I suspect she might have ovarian tumor. So I'd like to find out risk factors for ovarian malignancy. जी सर, इन व्यू ऑफ हर एज। हाँ जी, ये फिर बोलिए। अब टाइम हमारा हो गया 10:07, 8 हाँ जी, बोलिए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to know, sir, I would like to know the parity of the patient. Good. And any other symptoms associated with the mass. Good. Bleeding per vagina or discharge per vagina. And in view of her age and the parity, I would like to know the risk assessment. I would like to do the risk assessment of the patient. That is family history of breast, ovarian, and endometrial carcinoma in her first degree relative, and any history of cancer, previous history of cancer in the patient, any surgery, and history of OCPs, and history of breastfeeding, and history of ovulation induction drugs or any treatment for the ovulation induction she has taken, and any investigation and treatment up till now. Good. Sir, then I would do the general physical examination and then abdominal examination. In abdominal examination, in inspection, I would like to see the distension and prominence of veins. On palpation, would like to see the size of the mass, its nodular tenderness, its cystic or solid. On percussion, to rule out the to find out the shifting tenderness, and to rule I will do the percussion to find out the ascites. Good. After that, I will do the along with the general lab investigation, I will do the specific investigation, that is ultrasound abdominal pelvis, in which I want to know whether the there is mass is unilocular, multilocular, capillary, any ascites, size of the mass, where walls, septa, fluid inside, solid components, and papillary projection in the blood flow. Okay. After that, I would considering the age of the patient and the size of the mass, I would like to do the tumor markers in this patient, that is CA125, CEA, beta HCG, alpha fetoprotein. जी सर, ये सारे करवाऊंगी।
After that, after completing my investigation part, now I would like to do the counseling of the patient regarding the possible diagnosis that she is having an ovarian tumor, which is most possibly it's looking possibly it's malignant, and I will counsel the patient the possibility of the diagnosis and will give the possible choices of the treatment to the patient. सर काउंसलिंग इतनी काफी है? नहीं आप बोलते जाइए फिर मैं आगे. अच्छा जी. I will give explain the patient the possible choices and of the treatment and surgery, its associated risk and the complications. And I will counsel the patient regarding the follow-up after the treatment and after the surgery regarding the follow-up and I will counsel the patient about the follow-up after the surgery. Maybe she needs further intervention, that is that maybe she need chemotherapy or any other options also. I will optimize the general health of the patient by optimizing her hemoglobin and after taking anesthetic fitness, I will prepare the patient for the staging laparotomy. In the staging laparotomy, I will give the vertical incision, immediate after that peritoneal washings, and then I will stage the disease and then proceed accordingly. After that, post op counseling. ठीक, देखो ये आपने एग्जैक्टली ये 6-7 मिनट में कह दिया, यहाँ तक पहुंच गए. जी सर. आपके पास 10 मिनट हैं. अगर आप 7-8 मिनट में ये सारा कुछ कर दिया, आप पास हो. जी सर. सो ये सारी बात में आपका जो मैसेज, टेक होम मैसेज है, वो है कि रिमेन फोकस्ड. जी सर. आप इधर उधर की बातें बंद करो और जो बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, उसके रिलेटेड फिजिकल एग्जामिनेशन करो, उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करो, फिर काउंसल करके ट्रीटमेंट करो. ये 5 हेडिंग है जिसपे आपने जिनको 2-2 मिनट में कंप्लीट करके 10 मिनट में कंप्लीट करना. जी सर, अब समझ आइए. मैं तो बहुत इधर उधर भाग रही थी ज्यादा. तो वो सारी इधर उधर की बातें जो हैं वो उनको शेड ऑफ कर दो. और अगर पार्शियल इम्पोर्टेंस भी है, पार्शियल है, टोटल नहीं है. जी तो सर. इस तरह से आप अपने हर टॉक स्टेशन की आदत बना लीजिए. रिमेन फोकस्ड ऑन टू द प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम रिलेटेड सवाल की हिस्ट्री पूछी हमने, प्रॉब्लम रिलेटेड फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसी के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की. इसमें खास और अल्ट्रासाउंड इम्पोर्टेंट था, उसको डायरेक्ट किया और उसके बाद पेशेंट को इन्फॉर्म किया, डायग्नोसिस पॉसिबल काउंसल किया, फिर जो भी करना है वो कर लिया. Excuse me, sir. Sir, as you have told us in scenario that patient is complaining of abdominal distension, so shouldn't we ask about pressure symptoms of the patient, like any urinary and bowel complaints or bloating or shortness of breath, especially because patient is having. मतलब ये वो अगर पूछना चाहे इसमें तो मैंने कहा ना, आपने 7-8 मिनट में सारा कुछ खत्म कर लिया. अब इसमें आप ये जो कि डिस्टेंशन है उसको तो यूरिनरी बॉल सिम्टम्स भी पूछ ले और इवन गोइंग ऑन टू रेस्पिरेटरी के डिस्टेंशन से उसको सांस ठीक आता है, ये भी पूछ ले, तो ये फिट इन हो जाते हैं बाबा. सर मेट्स के भी तो पता करना चाहिए ना, कि जैसे कि अगर मेटास्टेसिस है उसके लिए भी. ठीक है, मेटास्टेसिस इन द लंग्स, उसके लिए आप पूछ रहे हैं कि आपको सांस ठीक आता है. तो 60 साल में तो सांस का ठीक ना आना बहुत सारी बातें. तो लेकिन आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. यू आर एट लिबर्टी टू आस्क अबाउट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, बाउल सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स, बिकॉज यू हैव गॉट 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा. इस फोकस्ड मैनेजमेंट में पहले हिस्ट्री के 4-5 सवाल, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के, फिर इन्वेस्टिगेशन के, काउंसल करके ट्रीटमेंट तक पहुंच गए हम.
और वेरी कंफर्टेबल। मैं आपको बार बार ये कह चुका हूँ, कई दफा कह चुका हूँ कि गायनी पेशेंट में उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल करके हमने घर भेज, इफ नीड बी कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस कर, और ऑब्स्टेट्रिक केसेस में पेशेंट को डिलीवर करके बच्चे के साथ घर भेजना और फैमिली प्लानिंग एडवाइस करना। अगर ये कंप्लीट कर लिया आपने 10 मिनट में, आप पास हो। सर इसमें सीटी स्कैन नहीं करवाएंगे इन्वेस्टिगेशंस में? और वो कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। सर फिर वो और दूसरा सर इन्होंने ट्यूमर मार्कर्स में इस स्टेज बिल्कुल में ठीक है। ये आप सुन लीजिए, इन्वेस्टिगेशन में कि जी अगर वो मैस है अल्ट्रासाउंड पे, वो उसके लिम्फ नोड्स और उसके स्प्रेड जानने के लिए सीटी एमआरआई, तो उनमें से कौन सा करवाएं, दोनों ठीक है। तो एमआरआई भी ठीक है, तो बिकॉज इट शोज लिम्फ नोड्स बेटर, तो आई विल डू दैट। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ठीक। सर हमें टीबी को रूल आउट करना चाहिए टीबीज में, टीबी के इसमें किसको रूल आउट करना चाहिए? सर टीबी क्या जी? ट्यूबरक्लोसिस सर। Sorry, I'm not getting. क्या सर ट्यूबरक्लोसिस की बात। ट्यूबरक्लोसिस, तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस में ऐसे मैस नहीं होता, लेकिन वो नंबर 1 डायग्नोसिस पे फोकस किया हमने। अगर इसमें ट्यूबरक्लोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डालें तो वो फिर 5वें 6ठे नंबर पे आएगा, 5वें 6ठे नंबर पे टीबी आएगी, क्योंकि उस ये देखें ना, हम इसका डिफरेंशियल इन्यूमरेट करते हैं, लिखते हैं। पहले ओवेरियन बेनाइन ट्यूमर, फिर ओवेरियन मैलिग्नेंट ट्यूमर, फिर उसके बाद ओल्ड फाइब्रॉइड, उसके बाद ये मीसेंटेरिक सिस्ट, उसके बाद सम intestinal tumor, or it can be even क्या होता है पॉलीसिस्टिक किडनी से क्या हाइड्रोनेफ्रोसिस, और फिर फाइनली टीबी। ये हो गया इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम इतनी दूर तक कहाँ जाएंगे, पहले नंबर या दूसरे नंबर पे ही रखिए इनको। लेकिन अगर आप कह दें, आप कहने पे फेल नहीं होंगी। मेरा मकसद है कि आपका टाइम जाया होता है। हम 10 मिनट में मरीज को ठीक करके घर भेजना है, चाहे गायनी का मरीज है, चाहे ऑब्स्टेट्रिक का मरीज है, चाहे कोई भी। ये इस पे फोकस कीजिए, आप घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम उठाओ, ट्विंस आपको दिखा दिया, ट्विंस, और जो ट्विंस में आपने डायग्नोसिस से लेकर ट्विन की डिलीवरी तक, फिर ट्विंस को प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाए तो इंक्यूबेटर में रख के घर भेजना, बस फिर आप पास हो, फिर आप पास हो। और गायनी के पेशेंट में जो भी है वजाइनल डिस्चार्ज है, सिंपल, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी ट्रीटमेंट, उसका फॉलोअप करके उसका डिस्चार्ज ठीक करना। ट्रीटमेंट में भी फॉर बोथ पार्टनर्स, में भी फॉर जो भी होता है, ओरल लोकल ट्रीटमेंट। तो इसलिए आपने ये आज का मैसेज जो है इस पेशेंट में खास तौर पर, 60 ईयर्स ओल्ड, मैस एब्डोमेन, और जो भी बाकी की कहानी है। और डॉक्टर सादिया ने कहा 3-4 पहले सवाल पूछे हिस्ट्री में, फिर 3-4 उसी में फैमिली से भी आ गई थी, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने तो केस ही 7-8 मिनट में खत्म कर दिया। तो ये तो कंफर्टेबली पास है, ये तो कंफर्टेबली पास। तो हेलो जी जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर अगर आरएमआई वो देते हैं हमारा जो है 250 से ज्यादा आता है, तो फिर ऐसे पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? वो तो हमारा गायनेकोलॉजिकल सेंटर में होता है। आपके ओवेरियन ट्यूमर है और आरएमआई चूंकि 250 ज्यादा है, सस्पिशियस है, पक्का तो ना हुआ, सस्पिशियस है, इसलिए इसकी हम जो भी करने वाले हैं, आप जो सादिया ने किए ये करने वाले हैं। और
पेरिपेट्रोल वॉशिंग लेंगे, फिर स्टेजिंग करेंगे, फिर उसके मुताबिक इलाज करेंगे, बस एक सी बात। और एक मिनट इसमें थोड़ी डिस्कशन ये हो सकती है कि इस RMI वाला और सस्पिशियस पेशेंट जो है उसकी फर्टिलिटी अगर वो कहती है मेरी रोक सेव करो, यंग पेशेंट, फिर ये है कि अगर वो स्टेज 1 है और एक ही ओवरी में डिजीज है तो फिर हम उसकी कंजर्व भी कर सकते हैं। और फिर हिस्टोपैथोलॉजी अगर उसकी है। हाँ जी जी सर, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का हम कब बताएंगे, किस लेवल पे बताएंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किस लेवल पे बताएंगे? जी बिल्कुल, जब आप ये बड़ा अच्छा पॉइंट किया, थैंक यू फॉर दैट। कि जब हम काउंसल करेंगे हम ये बताएंगे कि आई विल इनवाइट माय सर्जिकल कॉलीग टू परफॉर्म द सर्जरी, मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। सर इसमें गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम कब लेना है? तो वो जो जनरल सर्जन की बजाय अब ऑन्कोलॉजिस्ट ही है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। आई विल इन्वॉल्व gynecological oncologist in performing the surgery and further मतलब सर हम इसका स्टार्ट यूं ले सकते हैं ना कि आइडियली दिस पेशेंट शुड बी मैनेज्ड इन द ऑन्कोलॉजी सेंटर बाय द एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर जिसका RMI 250 से ज्यादा है उसको पहले हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में उसको डिस्कस करेंगे कि वो ऑपरेटेबल है कि नहीं है, देन वी विल प्रोसीड फॉर द स्टेजिंग लेप्रोटमी। और डायरेक्ट जब आपने कह दिया ना उससे, because the RMI is more than 250, I will involve gynecological oncologist or surgeon or जो भी, and then decide further management. एग्जामिनर पूछेगा आप क्या करेंगी, फिर आपने जो करना है वो बोल दें। नहीं सर, और दूसरा सर ओवेरियन में तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो तो सर्जरी ही है, क्योंकि वो कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स इम्प्रूव करती है। सर्जरी तो हम इन एनी केस कोई भी स्टेज होगी करेंगे ही। हाँ, तो वो बेहतर है वो सर्जरी वो करे जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कि वो लिम्फेडेक्टमी और वगैरह बेहतर कर सकता है आम जनरल गायनेकोलॉजिस्ट। सर हमें इसकी काउंसलिंग में कीमो के ऊपर बोलना चाहिए, कीमोथेरेपी पहले दिन ही बात देनी बस के ये सर्जरी विल बी फॉलोड अप बाय, अगर स्टेज 2A से ज्यादा है 2B और further 3, 4 the patient needs chemotherapy and I will decide the type I'll decide type and dose in consultation with oncologist। जी सर हम सिर्फ CA-125 ही बोलें क्योंकि पेशेंट की एज 60 इयर्स है, या सारे ट्यूमर मार्कर्स बोलें? जी वो 60 में ज्यादा एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं, ये बाकी जर्म सेल ट्यूमर्स और स्ट्रोमल सेल ट्यूमर वो यंगर एज में होते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भी एज में कुछ भी हो सकता है, तो कह देंगे ट्यूमर मार्कर बाकी के, तो हर्ज कोई नहीं। लेकिन ये उस वक्त जब आपको सारे आते हैं। सर आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। जी सर अब एग्जाम में तकरीबन 4 से 5 वीक रह गए हैं, तो काइंडली आप हफ्ते में 2 क्लासेस ले सकते हैं, एक क्लास गायनी की और एक ऑप की, प्लीज सर। तो एक मिनट आ जा इमरान। जी सर। मेरा सेकंड नहीं सुन रहा। इमरान जी सर। आज कितनी लड़कियां अटेंड कर? 103 थी सर। 103 सर। आप कहते हो 2 क्लासे, तुझे तो मुश्किल नाल आंदी है, 100 भी नहीं आंदी है। तो आप वादा करोगे आप 100 से ऊपर अटेंड करोगे तो मैं 2 भी कर दूंगा। सर पक्का वाला प्रॉमिस? सर हम तो रेगुलरली अटेंड करते हैं, अब एग्जाम में कम टाइम रह गया है तो आप हमारी डबल अटेंडेंस हो जाएगी। देखो मैं तो सारे टॉपिक्स पे इसी तरह ही शॉर्ट, आप सर जैसे आप हमने नोट्स बनाए हैं आपके लेक्चर्स के, इसी तरह हर टॉपिक के सर अगर आप एग्जाम से पहले सारे करा दें तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सर 111 थी स्टार्ट में, 111। मैंने कहा अब तो मैंने कल से अस्पताल जाना शुरू कर दिया, मैं 2 साल नहीं गया अस्पताल, तो अब मेरा इरादा है कि अगला लेक्चर में जहाँ फर्क साहब बैठ के लेते हैं वही लूंगा और डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा डमीज पे
कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो, नहीं करो। बाकी रह गए लेक्चर। थैंक यू, लेक्चर 1 से मैं 2 कर सकता हूँ। पहले सर 2 क्लासेस कर दें थैंक यू हफ्ते सर, प्लीज कर दें। मैंने संडे को किया तो आप लोग आते ही नहीं। आप सर संडे एक को टॉक्स की आते कर लें और एक शॉर्ट केस की कर लें। सर एक शॉर्ट केस की कर लें, एक टॉक्स की कर लें। ये सारे टोक्स ही हो गए ना। अब शॉर्ट लॉन्ग केस तो रहा ही कोई नहीं। जो भी है लॉन्ग केस होगा, शॉर्ट केस होगा, तो टोक स्टेशन पे पूछा जाएगा जो आपने 10 मिनट में करना है, बस। सर जो टाइम आपके पास अवेलेबल हो, सर फिस्टुला रिपेयर करा देंगे, तरह कीजिए। अच्छा चले पहले आप मेरे सेक्रेटरी को भेजें कि जी 1 क्लास और होनी चाहिए, फिर मैं देख के फैसला करूंगा कितने लोगों ने कहा है, फिर मैं कर दूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपको सैटरडे सूट करता है? आपको सैटरडे सूट करता है? जोन साहब कहेंगे सर। सैटरडे संडे सब कुछ सूट करता है, सर हमें आप सूट करते हैं। वो आप अकेली को करता है ना। सर आपको जो सूट करे आप वो डे बता दीजिए, हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप हमारी क्लास में। अगर आप में से 100 लड़कियों काम करो तो अगले सैटरडे को 9 से 10 क्लास होगी। जी सर। थैंक यू सर। लेकिन शर्त ये है कि 100 लिख के भेजे के हो। सर वो 9 to 10 यूसुफ साहब की क्लास होती है संडे सैटरडे को। जी सर। सर आप संडे कर लें। सर आपको जो फिजिबल लगे आप वो रखिए। चल आप अपनी चॉइस लिख के भेजें। सैटरडे 9-10 नहीं हो सकती। लेकिन सर एक गायनी एक ताकि हमारी दोनों चीजें कवर हो। सर संडे सबके लिए होती है। सर अदर देन सैटरडे भी नाराज हो जाती है। सर मंडे कर लो। आप ऐसा करो, दिन भी साथ चूज करके लिखो एक, फिर जो मेजॉरिटी होगी वो कर लेंगे। सर फिर एक गायनी एक ऑप्शन, हमारे अच्छे खासे टॉपिक कवर हो जाएंगे दोनों के। हाँ ठीक है, अगला स्टैटिस करेंगे। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर एक दफ़ा ये किसी एग्जामिनर ने पूछा था कि आप अपेंडेक्टमी जब करते हैं तो वो म्यूसिनस ट्यूमर के लिए करते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि जब ड्यूरिंग अगर आप स्टेजिंग कर रहे हैं तो उसमें आपने अपेंडेक्टमी करनी है? तो सर वो मैं थोड़ी इसमें कंफ्यूज थी कि हम क्योंकि इसकी बायोप्सी तो पहले नहीं करते, तो हम ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम अपेंडेक्टमी करें ड्यूरिंग द प्रोसीजर स्टेजिंग लेप्रोटमी या ना करें? ना, बिल्कुल ना करो। नहीं करेंगे। ओके, मैंने लफ्ज बिल्कुल कहा। ये आज का मैसेज टेक होम आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके इम्तिहान के लिए नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। मैं जब हाउस सर्जन था, हमारे टीचिंग अस्पताल में 2 प्रोफेसर थे। एक प्रोफेसर साहब थे बड़े ओवर एंथुसियास्टिक, वो कोलिसिस्टेक्टमी करने जाते तो अपेंडिक्स तो जरूर निकालते और साथ स्टमक और ड्यूडिनम को भी देख लेते और इधर उधर भी हाथ फेरते। द रिजल्ट वाज हिज मॉर्बिडिटी वाज वेरी हाई। दूसरे प्रोफेसर साहब थे बड़े, उसको कहते डरपोक, कंजर्वेटिव है, तो वो जो करना वो करके सीधा वापस आता। उसकी मॉर्बिडिटी वाज लो, उसकी बड़ी रेपुटेशन थी। ये हमारे प्रोफेसर जो बड़े अच्छे सर्जन थे, उसकी रेपुटेशन, वो तो बंदा ही मार देता, वो तो बंदा ही मार देता। तो अननेसेसरी सर्जरी नहीं करनी। उसका प्रूफ अब ये है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद मरीज उसी दिन नहीं तो अगले दिन चला जाता है, लैब कोली के बाद, अपेंडिसेक्टमी के बाद, हिस्टेक्टमी के बाद, सब क्यों चला जाता है? क्योंकि स्कोप अंदर डालते हैं, ना किसी इंटेस्टाइन को टच करते हैं, ना किसी और पेरिटोनियम को टच करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इरिटेशन ऑफ पेरिटोनियम नहीं होती, इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन नहीं होता, कोई मॉर्बिडिटी नहीं होती। अब हमारे जमाने में जब मैं करता था जी
एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के बाद 7-8 दिन मरीज अस्पताल में रहता था। अब यूसुफ LAVH करता है या लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी करता है, मरीज को अगले दिन घर चला जाता है, बिकॉज he does not handle peritoneum, he does not do any unnecessary surgery. So आज का ये सवाल आप बहुत अच्छा पूछा आपने, मैं विद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अननेसेसरी सर्जरी नहीं करनी आपने। और पेंडिसेक्टमी जनरल सर्जन नहीं करता, बाबा तुझे क्यों करो, रहने दो। और आफ्टर पेंडिसेक्टमी की मॉर्बिडिटी है कि नहीं है? इवन 100,000 केसेस में 1-2 मर भी जाते हैं मॉर्बिडिटी, तो इसलिए बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको एग्जामिनर कहता है रूटीन में पेंडिसेक्टमी करोगे, आंसर इज नो। वो कहते क्यों, ये तो मुफ्त दे रहे हो उसको। तो आप कहिए सर with that handling of intestines and making an incision in the appendix, the intestine adds to extra infection, extra morbidity. I will not invite that in my gynecological surgery. सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो स्टेजिंग लेप्रोटमी के बाद पेशेंट को कितने देर हॉस्पिटल में रखना चाहिए, और व्हाट इज द रोल ऑफ थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस इन दिस केस? जी वो रखिए उसी तरह जितना बाकी को रखते हो। जब उसके सेटल हो जाए तो शी नीड नॉट स्टे फॉर अ वीक और 10 days, उसको लेटर गो और प्लान कीजिए ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ उसकी कीमोथेरेपी कब शुरू होगी। जो जनरली वो कहते हैं कि सर्जरी से फुल्ली रिकवर हो तो फिर हो। जी सर आपसे रिक्वेस्ट थी, जो VVF प्रिपेयर है वो करा दें प्लीज सर, वो एग्जाम में आती है और वो जहाँ बुक्स में लिखी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। वंस एक दफा आपने 2-4 उसके स्टेप्स कराए थे, लेकिन अब ऐसा करते हैं, अगला तो हमने कहा ऑब्स्टेट्रिक का केस होगा, उस दिन मुझे याद करा दे, उससे अगला VVF कर दे। सर जैसे आपने वो IVF वाले के स्टेप्स कराए थे, काइंडली अगर ये भी स्टेप्स हो जाए तो और कर लेंगे। VVF को इतना मुश्किल नहीं है, इम्तिहान के हिसाब से कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर पहले ऑन्कोलॉजी खत्म कर लेते हैं। अब देखो ना, हर कोई अपना अपना बोलता है, तो चल ऑन्कोलॉजी में नहीं सर, मैं फिर ये कह रही हूँ कि लिस्ट में काइंडली ऐड कर लें VVF प्रिपेयर काइंडली। आपने अच्छी बताई थी, लेकिन वो थोड़ी एग्जाम के हिसाब से। अब तो मेरा क्लिनिक भी है, मैंने अस्पताल जाना है, क्योंकि मैंने अस्पताल जाना शुरू कर दिया। चल अब आप अगर लिख के 100 ने भेजा तो मैं दूसरी क्लास लूंगा, अगर 100 ना हुए नहीं लूंगा। नंबर 1। नंबर 2, आप दिन की भी चॉइस दीजिए, और टॉपिक्स अगर अगला होगा तो वो होगा। हमने कहा कौन सा कहा था ऑब्स्टेटिक्स का ना, क्या कहा था मैंने, अगला टॉपिक क्या होगा? कोई भी नहीं बोल रहा सर APH नहीं, अगला ऑब्स्टेटिक्स का कुछ था। पेप्स में करवानी सर। क्या सर पहले मैलिग्नेंसीज का बताया था, सब लड़कियों ने बताया था एक गायनी का करें, एक ऑप्स का करें, फिर सबने कहा कि वो डॉग्स वाला कर ले, तो कोई टॉपिक ही नहीं डिसाइड हुआ था अभी तक। चलो देखते हैं, अगला ऑब्स्टेटिक्स करेंगे जो भी होगा। चलो ये कर लेंगे आप। सर माइक्रोस्कोपिक रिसेक्शन और डीबल्किंग सर्जरी का थोड़ा डिफरेंस बता दें। क्या जी? डीबल्किंग सर्जरी एंड मैक्रोस्कोपिक रिसेक्शन। लेप्रोस्कोपिक रिसेक्शन ये तो सेशन होगा नहीं वहाँ। आप क्यों इस पे अभी टाइम ज़ाया करते हैं? वैसे ये इम्तिहान के बाद कभी कहेंगे तो कर लो। ओके जी, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह।